بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدرآباد اس وقت ملک کا چوتھا بڑا شہر ہے جس کی آبادی 1 کروڑ 5 لاکھ سے زائد ہے۔ اس آبادی میں مسلمانوں کا تناسب 35% سے زائد ہے اور اس شہر میں جماعت اسلامی ہند کی 24 مقامی جماعتیں اور 5 حلقہ کارکنان ہیں۔ ارکان جماعت کی جملہ تعداد 1003 ہے جس میں 150 NRIs بھی شامل ہیں۔ شہر کی سطح پر ناظم شہر، شہر کی 15 رکنی مجلس شورا، شہر کے مرد و خواتین سیکرٹریز اور ادارے جات کا نظم ہے۔ مرکزی نظم کے ذمے جو کام ہیں ان میں ایک اہم کام رابطے عامہ یا پبلک ریلیشن کا کام ہے۔ اس سلسلے میں شہر کی سطح پر ایک ٹیم کام کرتی ہے اور اس ٹیم کے ایک حصے کے طور پر 3 علماء بھی موجود ہیں جو خاص طور پر علماء کرام سے روابط رکھتے ہیں۔ خواتین کی ایک علیحدہ ٹیم موجود ہے جو خواتین میں رابطے عامہ کا کام کرتی ہے۔ MLAs، کارپوریٹرز، دانشوران ملت سے ملاقاتیں جاری ہیں۔ وکلاء سے روابط، ڈاکٹرز سے روابط، علماء و دینی مدارس سے روابط، سماجی و فلاحی دینی تنظیموں سے روابط اور دلت لیڈرز سے روابط قائم ہیں۔ ایک PR کٹ تیار کی گئی اور اس PR کٹ کا انفرادی ملاقاتوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ 250 سے زائد VIPs کو یہ PR کٹ اس میقات میں دی گئی۔ شہر کی سطح پر ہر سال اردو اور انگلش میں ڈائریز پرنٹ کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیبل کیلنڈرز VIPs میں خاص طور پر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ PR کٹ میں دعوتی لٹریچر کو بھی اہم مواقع پر شامل کر کے پہنچایا گیا۔ 1000 سے زائد ٹیبل کیلنڈرز بیوروکریٹس، NGOs، پولیس ڈپارٹمنٹس، سیاسی قائدین و پروفیشنلز میں تقسیم کیے گئے۔ دلت لیڈرز کی ایک خصوصی افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے علاوہ ائمہ مساجد کے لیے افطار پارٹی کا علیحدہ سے اہتمام کیا گیا۔ ائمہ مساجد کے خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ ایڈوکیٹس کے لیے افطار پارٹی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ شہر کی سطح پر میڈیا ایک اہم شعبہ ہے۔ مرد و خواتین میں میڈیا سیکرٹریز علیحدہ موجود ہیں۔ دونوں کے ساتھ ایک ایک ٹیم کام کرتی ہے۔ مختلف اہم پروگرامز میں میڈیا کی اہم شخصیات کو انوائٹ کیا گیا۔ سوشل میڈیا کے لیے بھی 2 ٹیمیں سوشل میڈیا کی ٹریننگ کے سلسلے میں 3 روزہ خصوصی پروگرام رکھا گیا۔ شہر کی سطح پر ارکان کے واٹس ایپ گروپ کام کر رہے ہیں۔ اہم TV پروگرامز میں وابستگان جماعت کے پروگرامز نشر کیے گئے۔ طبقات: اس وقت پروفیشنلز میں ڈائریٹی فورم PSF کام کر رہی ہے۔ اس سے تقریباً 500 IT پروفیشنلز وابستہ ہیں۔ پروفیشنلز کا ماہانہ تربیتی پروگرام ہوا کرتا ہے۔ سوشل سروس کے میدان میں PSF کا کام وسیع ہے۔ اسکل اکیڈمی کا انہوں نے قیام عمل میں لایا ہے۔ ٹیچرز کے لیے امپاورمنٹ پروگرام انہوں نے منعقد کیا۔ کیریئر گائیڈنس ویبینار کیے گئے اور GHMC کے تعاون سے روزگار میلہ منعقد کیا گیا اور حال ہی میں پروفیشنلز کے لیے کل یومی ورکشاپ رکھا گیا۔ انکم ٹیکس کے سلسلے میں گائیڈنس کے لیے پروفیشنل کے پروگرامز رکھے گئے۔ نوجوان طبقے میں کام کے لیے منڈے اسلامک کلاسز کے عنوان سے شہر کے مختلف مقامات پر نوجوانوں کے کلاسز منعقد کیے گئے اور پھر نوجوانوں میں کام کے لیے علیحدہ سے خصوصی منصوبہ بنایا گیا۔ 22 سے 35 سال کے نوجوانوں کو فوکس کر کے نوجوانوں میں کام کیا جا رہا ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیمپس، اسپورٹس کمپٹیشنز اور پکنک پروگرامز نوجوانوں کے لیے منعقد کیے گئے۔ ابھی نوجوانوں کے لیے خصوصی یوتھ کلب کا قیام کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ خواتین میں امومت سوسائٹی کام کر رہی ہے۔ امومت سوسائٹی کے ذریعے پری میرٹل اور پوسٹ میرٹل کاؤنسلنگ کا کام جاری ہے اور اس کے علاوہ میرج بیورو کام کرتا ہے۔ خدمت خلق کے کئی کام اس سوسائٹی کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر ورکنگ وومن ہاسٹل ہے جس میں مختلف کمپنیز میں کام کرنے والی خواتین کے علاوہ طالبات کے لیے بھی علیحدہ سہولت موجود ہے۔ جھگی جھوپڑیوں کے باشندے: سلمز میں کام کرنے کا خصوصی منصوبہ حیدرآباد میں بنایا گیا، چنانچہ 22 الخیر سوسائٹیز اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں۔ ان الخیر سوسائٹیز کے ذریعے سے ٹیلرنگ سینٹرز، ایڈلٹ ایجوکیشن سینٹرز، ڈائگنوسٹک سینٹرز، کلینکس، میڈیکل کیمپس کے علاوہ آئی کیمپس رکھے گئے جہاں پر مریضوں کو فری میں 2000 سے زائد چشمے دیے گئے۔ کیٹریکٹ سرجریز کیے گئے۔ میڈیکل ایکوپمنٹ بینک خاص طور پر ڈسیبلڈ کے لیے قائم کیا گیا جہاں پر میڈیکل بیڈ، ویل چیئر وغیرہ فراہم کیے گئے۔ اس میقات کا نیا منصوبہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کیا گیا جو بہت مفید اور کامیاب رہا۔ شہر کی سطح پر 10 بلا سودی سوسائٹیاں قائم ہیں۔ ان سوسائٹیوں کے ذریعے سے 25,000 تا 50,000 روپے بلا سودی قرض فراہم کیا جاتا ہے۔ سیوا میکس کے تحت قائم سوسائٹیوں میں اور ان سوسائٹیوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ بہت ہی نامنل سروس چارجز پر یہ سوسائٹیاں کام کرتی ہیں۔ سالانہ 200 تا 500 روپے فیس الگ الگ سوسائٹیوں میں لی جاتی ہے اور ان سوسائٹیز کے ذریعے سے ہزاروں افراد کو کروڑوں کی رقم بطور قرض فراہم کی گئی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ڈیفالٹرز کا ریٹ 2% سے بھی کم رہا۔ بنگلہ بولنے والے افراد کے لیے 2 خصوصی پروگرامز منعقد کیے گئے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر منعقدہ ایک پروگرام میں تقریباً 100 سے زائد بنگلہ زبان بولنے والے افراد نے شرکت کی۔
मराकज़ दानिशवरान एकेडमिशियंस में काम का खुसूसी मनसूबा बनाया गया। माह रमज़ान में ब्रदरान वतन में एकेडमिशियंस हैं, उनके लिए एक खुसूसी इफ्तार के मौके पर बड़े पैमाने पर मुलाकातों और उनको मदऊ करने का अहतमाम किया गया। एक एकेडमिशियंस की मीटिंग रखी गई थी जिसमें तकरीबन 40 से ज़ायद अहम एकेडमिशियंस ने जिनका मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से ताल्लुक़ था ने शिरकत की। शहर हैदराबाद में जमात इस्लामी हिंद के तहत तकरीबन 40 NGOs काम करती हैं, जिसमें कुछ NGOs शहर के सतह पर हैं और कुछ NGOs मुकामी जमातों में हैं। बिलासुदी सोसाइटियाँ और अलखैर सोसाइटियाँ मुकामी सतह पर कायम हैं, जबकि शहर के सतह पर IIC और IICD, अर्रहमा फाउंडेशन, उम्मत सोसाइटी, जामिया रियाजुस सालिहात आजमपुरा, जामिया रियाजुस सालिहात टोली चौकी और इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी कायम हैं। इन इदारों का मुख्तसर तारुफ पेश है। जामिया रियाजुस सालिहात आजमपुरा। जामिया रियाजुस सालिहात आजमपुरा हैदराबाद में 250 लड़कियां नाज़िरा, शोबे हिफ्ज़, आलिमियत और फजीलत की तालीम हासिल कर रही हैं और यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी भी मौजूद है। जामिया अपनी मुतदिल फ़िक्र और मुनफरिद निसाब के लिए मारूफ है, जहाँ दीनी तालीम के साथ इंग्लिश और कंप्यूटर की भी तालीम दी जाती है। जामिया रियाजुस सालिहात टोली चौकी। जामिया रियाजुस सालिहात टोली चौकी में 150 लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं। यहाँ डिप्लोमा इन इस्लामियात और आलिमियत की तालीम का भी नज़्म है। IICD गूंगे, बहरे, नाबीना और मेंटली रिटायर्ड अफराद में काम करने वाला एक अहम इदारा है, जिसके तहत आइडियल स्कूल फॉर डिसेबल्ड गवर्नमेंट का रिकग्नाइज्ड स्कूल कायम है। 120 तलबा व तालिबात इसमें मौजूद हैं। यहाँ पर फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑडियोलॉजी सेंटर कायम हैं। इस ऑडियोलॉजी सेंटर के तहत पैदा होने वाले बच्चों की टेस्टिंग की जाती है। IIC इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर का कॉल सेंटर 16 घंटे काम कर रहा है और 6 ज़बानों में इस वक्त इसका काम जारी है। 8-8 घंटों की शिफ्ट में 3 ज़बानों के दाई हैदराबाद में मौजूद रहते हैं और इसके अलावा तमिल, कन्नड़ा और मराठी, इन 3 ज़बानों में भी इसका सपोर्ट सिस्टम कायम है और ब्रदरान वतन को यहाँ से इंफॉर्मेशन फराहम की जाती है। साल 2013 में अपने क़याम के बाद से अब तक 700 अफराद ने इसके ज़रिए से हकीकी फ़ायदा हासिल किया है। फेसबुक और ट्विटर पर इसके ताल्लुक से बड़े पैमाने पर कैंपेन्स चलाई जाती हैं। लाखों अफराद तक इसका पैगाम पहुंचा है और इस वक्त माहाना 600 कॉल्स इस सेंटर को ब्रदरान वतन के मौसूल होते हैं। इस सेंटर ने मरकजी प्रोग्राम्स भी रखे हैं, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों के अफराद ने शिरकत की और इस्तेफादा किया। मरकजी सेक्रेटरी जनाब इकबाल मुल्ला साहब की निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। अर्रहमा फाउंडेशन शहर की सतह की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की ऑडिट किया करता है, इनकी रहनुमाई का काम करता है। इसके अलावा इसके तहत एक स्कूल नेकनामपुरा हैदराबाद में कायम है। मुंतखब बेवाओं को भी इसके तहत वजीफा दिया जाता है। शांति ट्रस्ट। शांति ट्रस्ट भी शहर की सतह पर कायम है। इसके ज़रिए से सब डिपो और 2 मरकजी मकतबे काम करते हैं, जिनके ज़रिए से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की किताबों का सालाना सेल हुआ करता है। डेर। शहर की सतह पर डॉक्टर्स की तंजीम डेर कायम है और इसका माहाना प्रोग्राम होता है, जिसमें 100 से ज़ायद डॉक्टर्स शरीक हुआ करते हैं। मेडिकल तलबा के लिए स्टडी सेंटर्स 3 मकामात पर कायम हैं। इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी। इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी ये शहर हैदराबाद की सबसे कदीम सोसाइटी है, जिसका सन 1970 में क़याम अमल में लाया गया था। इसको 12A ATG FCRA की सहूलत हासिल है। इसका टाइप नॉर्थ अटलांटिक इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन के अलावा इकना रिलीफ कनाडा, कुवैत, मुस्लिम एड इंग्लैंड, इसको अमेरिका से भी है। इसके ज़रिए 800 ऑर्फन्स को माहाना स्कॉलरशिप दी जाती है। इसका न्यूज़लेटर जारी किया जाता है और ईद उल फितर और ईद उल अजहा के मौके पर इमदाद इसके ज़रिए से तकसीम की जाती है। इस सोसाइटी के ज़रिए से 4 हॉस्पिटल्स और 3 स्कूल्स का नज़्म किया जाता है। ज़िक्रा स्कूल, जिसमें 600 से ज़ायद तलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। अल फलाह स्कूल, जिसमें 400 तलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। जामिया दारुल हुदा, जिसके तहत नाज़िरा, हिफ्ज़, दारुल इफ्ताह और इसके अलावा इंग्लिश मीडियम 4th ता 10th क्लास तक की तालीम की सहूलत हासिल है। इसके तहत जो हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, इसमें ख़दीम मुस्लिम मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल आजमपुरा है, जिसके ज़रिए से सालाना 3 लाख पेशेंट्स इस्तेफादा करते हैं। कोविड के दौरान मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल वादी हुदा का क़याम अमल में लाया गया। तेज़ी के साथ ये हॉस्पिटल तरक्की कर रहा है। माहाना 600 से ज़ायद पेशेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और अभी सन 2022 में मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल तारनाका का क़याम अमल में लाया गया। यहाँ डायलिसिस का भी अहम सेंटर है और यहाँ से ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम पेशेंट्स की बड़ी तादाद मुस्तफ़ीद हो रही है। मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल टोली चौकी की तामीर का काम सन 2016 में शुरू किया गया था और अब तक 10 करोड़ के सरफे से इसकी तामीर का काम 80,000 स्क्वायर फुट के स्लैब की शक्ल में मुकम्मल हुआ है और सिविल वर्क इख्तिताम पर है। इसके बाद अंदाज़ा यह है कि तकरीबन इतनी ही रकम मजीद इसके इंटीरियर वर्क, फर्नीचर और इक्विपमेंट के लिए दरकार होगी। तब इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा इंशाअल्लाह।
इस तरीके से मुस्लिम ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की शक्ल में 4 हॉस्पिटल्स काम करेंगे। शहर की सतह पर मरकजी प्रोग्राम्स, मुहिमों की लॉन्चिंग और अहम जलसे मुनक्किद किए जाते हैं। हल्के और मरकज की सतह के सारे कैंपेन्स की लॉन्चिंग के प्रोग्राम भी शहर का नज़म करता है। तौसी के लिए खुसूसी मंसूबा शहर हैदराबाद की नज़म ने बनाया था और इसके तहत सन 2009 में शहर को 12 हिस्सों में तकसीम किया गया था। 12 जमातें कायम की गई थीं, लेकिन साल 2023 को पहुंचने तक अब शहर 29 हिस्सों में तकसीम है, जिसमें से 24 मुकामी जमातें बन चुकी हैं और 5 हल्के कारकुनान हैं। और मंसूबा यह है कि नई मीक़ात के आगाज़ में तकसीम के जरिए से 38 पॉकेट्स में तकसीम होगा, जहां पर 25 मुकामी जमातें और 13 हल्के कारकुनान इंशाअल्लाह काम करेंगे। तकसीम जदीद के इस मंसूबे को हल्के की मंजूरी हासिल हो चुकी है और मरकज़ की मंजूरी के बाद इस मंसूबे को इंशाअल्लाह नई मीक़ात में नाफिज किया जाएगा। शहर की सतह पर तौसी के लिए 2 मर्द सेक्रेटरीज और 2 ख़वातीन सेक्रेटरीज मौजूद हैं। तौसी के इलाकों में जितने प्रोग्राम्स या दाई या ऑफिसेस या असातिज़ा मौजूद हैं, इनकी स्पॉन्सरशिप शहर के ज़िम्मे है और शहर का नज़्म इस पर होने वाले अखराजात को बर्दाश्त करता है। मुकामी जमातों की जिम्मेदारी भी इस नज़्म के ज़िम्मे है। नाज़िम शहर और सिटी सेक्रेटरी शहर की मुख्तलिफ मुकामी जमातों के तंजीमी दौरे किया करते हैं और इन दौरों के मौके पर रहनुमाई और जायज़े का काम हुआ करता है। शहर की सतह पर होने वाली कोई भी मुहिम, अहम प्रोग्राम्स, चाहे वो मरकज़ की जानिब से आए या हल्के की जानिब से, इसकी प्लानिंग शहर की शुरा के ज़रिए से की जाती है और मज़ीद तफ़सीलात शहर के सेक्रेटरीज़ की मीटिंग में फ़ाइनल की जाती हैं। इस तरीके से शहर हैदराबाद का ये नज़्म इस वक्त जमात इस्लामी हिंद की एक बड़ी क़ुव्वत है और यहाँ पर एक बड़ी अफरादी ताकत और बड़े वसाइल के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह काम अंजाम पा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन कामों में मज़ीद तेज़ रफ्तारी पैदा हो। डिस्कशन फोरम। शहर की सतह पर एक डिस्कशन फोरम कायम है, जिसका इजलास हर 3 महीने में एक मरतबा होता है, जिसमें मुल्की, मिली और तंजीमी उन्वानात के ऊपर सरहासिल मुबाहिस हुआ करते हैं और मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल पर गौर खौस किया जाता है। इस डिस्कशन फोरम में शहर की मजलिस शुरा के अरकान, शहर के सेक्रेटरीज, मर्द ख़वातीन और उमराए मुकामी शरीक होते हैं। CIC बच्चों के 80 हल्के इस वक्त शहर हैदराबाद में कायम है और इनसे वाबस्ता 130 टीचर्स की ट्रेनिंग का कुल-यौमी वर्कशॉप माह दिसंबर में मुनक्किद हुआ। 2345 बच्चे इन हल्कों से वाबस्ता हैं। इन बच्चों के लिए खिरात और मुख्तलिफ मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में आया। फैमिली काउंसलिंग सेंटर। शहर में 3 फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स कायम हैं, एक अमूमत सोसाइटी की निगरानी में और दूसरे 2 मुकामी जमातों की निगरानी में काम कर रहे हैं। इसके अलावा APCR के तहत भी एक सेंटर काम कर रहा है। मसाजिद कोऑर्डिनेशन कमेटी। मसाजिद कोऑर्डिनेशन कमेटी शहर की सतह पर कायम है और इसके तहत मसाजिद के सदूर और सेक्रेटरीज का एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें 100 से ज़ायद जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस्लामिक स्टडीज़ एकेडमी। शहर की सतह पर इस्लामिक स्टडीज़ एकेडमी का क़याम अमल में लाया गया। इसको जो अहम टारगेट दिया गया वो ये है कि इस्लामिक स्टडीज़ का एक ऐसा सिलेबस डिज़ाइन किया जाए जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स में पढ़ाया जा सके और फिर इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर्स की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का इंतजाम किया जाए। गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल में इस कमेटी ने सिर्फ सिलेबस की डिज़ाइन का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। इस वक्त प्रूफ रीडिंग का काम जारी है। नॉर्थ अटलांटिक इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन के ताउन से एजुकेशन सपोर्ट का एक प्रोग्राम बनाया गया है और इसके तहत ऐसे तलबा को इमदाद दी जाएगी जो CA, लॉ, जर्नलिज्म, पब्लिक सर्विस, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी या MSc फिजिक्स या केमिस्ट्री की तालीम हासिल कर रहे हैं। तरबियत व तज़किया। तरबियत व तज़किया के तहत शहर के अरकान का सालाना तरबियती इज्तिमा मुनक्किद किया जा रहा है। तकरीर की तरबियत की क्लासेस शहर की सतह पर 2 अलग अलग ग्रुप्स चलाए गए। उम्मीदवारान रुकनियत के 10 दिन के तरबियती क्लासेस के जुमला 5 बैचेस पिछले 2 सालों में चलाए गए और 6वां बैच जारी है और इस प्रोग्राम तक 6ठे बैच की भी तकमील हो जाएगी। 2 दिन का लीडरशिप प्रोग्राम भी शहर की सतह पर रखा गया।